time to be comforted. Settled life and cultivation gave man leisure. He had no longer to always think of getting food. During part time he could make stone tools, hoes or pots and weave cloth. Some people spared from producing their own food could even devote themselves to other activities all the time. This resulted in division of labor. इससे क्वेश्चन पूछा है. The settled community life needed rules to regulate the behavior of the members of the community. It is not possible to exactly how regulations were established. It appears that the decision regarding the community were taken by the people as a whole or by a council of elders, as is in the practice in tribal societies. There were perhaps no kings or any organized government. Most likely there were chiefs elected by the community for their qualities of leadership. But these chiefs could not pass their position on to their sons and they enjoyed few special privileges. Archaeological excavations not even revealed anything which would indicate the prevalence of a higher status for some members of the community. This is also supported by the study of life in many tribes in modern tribes. Thus, social inequalities do not seem to have emerged even in Neolithic times. बढ़िया तो है वैसे. Question number 1 लेते हैं. Question number 1. What do men do in spare time? क्या है? All of the option. In the passage, division of labor means specialization to acquire greater skill, learning arithmetic, working in group. क्या होगा? Specialization to acquire greater skill. A1. First. To which period do the Neolithic time refers? किस period को Neolithic time? Later part of Stone Age. First one. A option. Neo का मतलब क्या होता है ना? और लिथिक का मतलब क्या होता है? Stone. Rock, yes. Rock stone. तो rock stone एक ही चीज है ना? तो थर्ड का A. ठीक है? Okay. Fourth. Chiefs were elected by the committee for their क्या? B second. Quality. B second. The meaning privilege is Benefit. क्या होगा? So C. C benefit. Question number 6 है. एक सेकेंड. 6 से लेके कितना है? 15. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. If you permit me to speak the truth, I shall state without hesitation that you have done a mistake. Where is the error? Part C. Second. किसी का मेरा मिस्टेक होगा. क्या होगा?
सर डन की जगह मेड होगा, मेड मिस्टेक होता है, डन मिस्टेक नहीं। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी 6 नंबर में सी, और 6 का एक्सप्लेनेशन भी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, डू डज डिड, ठीक है, तो मैं डू बेसिकली लिख दिया। डू अ मिस्टेक नहीं होता है, वी नेवर डू अ मिस्टेक बट वी ऑलवेज मेक अ मिस्टेक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। वर्मीन डज नॉट हार्म टू क्रॉप्स। सब प्लूरल है ना सर, वर्मीन सब प्लूरल है। हाँ नहीं, सिंगुलर है बता रही है सर, सिंगुलर ही है, लेकिन नहीं समझ में आया कि डच क्यों लगा है। नहीं, वर्मीन प्लूरल होता है भाई, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। ओके सर। डू होना चाहिए था, डज सिंगुलर वर्ब है। चूज एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द इडियम। टू गिव oneself airs, क्या होगा? डिफॉल्ट बिहेविंग एरोगेंटली। एरोगेंटली। द बॉयज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 मार्क कर लीजिएगा। द बॉयज absented themselves for 2 days. सर ए ऑप्शन सर। ये ऑप्शन किसका आंसर है? Whose answer is this? सर वो एब्सेंटेड है, नहीं सर नहीं होगा। पैसिव में चला जाएगा ना, जबकि वहां पे सब्जेक्ट एक्टिव है। नो एरर, फोर्थ ऑप्शन, यस 9 सर। नंबर। देखिए क्या है, आप लोगों ने रिफ्लेक्सिव वर्ब पढ़ा होगा, तो रिफ्लेक्सिव वर्ब में जैसे एंजॉय है, रिकंसाइल है, एब्सेंट भी है ना, ठीक है, अवेल है, ठीक है। तो एब्सेंट भी जनरली रिफ्लेक्सिव वर्ब है, इसलिए उसको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिवली यूज भी हुआ है। ओके, माई मदर इंसिस्ट ऑन गेटिंग अप समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी, क्या होगा? सेटिंग अप, सॉरी। माई मदर इंसिस्ट ऑन सेटिंग अप समथिंग एवरी डे फॉर चैरिटी, क्या होगा? असाइड। सर सेटिंग असाइड हो जाएगा ना, कुछ कमाई में से कुछ हिस्सा अलग कर देना, किसके लिए? चैरिटी के लिए, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। He began on a new business venture, क्या होगा? सर ए ऑप्शन सर, एम्बार्क। Embarked on, ऐसे पूरा पढ़िए, embarked on, embark के साथ on ही आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन। यस सर। I have to say them the truth, क्या होगा? टेल द ट्रूथ। Tell the Sir, truth, speak. फर्स्ट ऑप्शन ना, बताना सर है। टेल। Tell, yes, ठीक है। यस सर। बात करनी है कि बताना है? सर बताना है। Hold on, just a minute, hold on. Okay. 30 number. Choose an appropriate antonym of the given word. Vanity क्या होता है? सर मिलिट्री हो जाएगा सर। वैनिटी का क्या होगा एंटोनिम? सर फोर्थ होगा सर, फोर्थ। ह्यूमिलिटी ना, यस यस सर। ये Yes, तो आप sir. लोग उसमें पढ़े होंगे लिटरेचर में। ओके, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से
कोई एक वर्ड करेक्ट है, 3 गलत है, क्या होगा? सर 3 वाला। थर्ड, ये सही है? ACQUISI सही है? यस सर। इसका मतलब क्या होता है एक्विजिशन का? परचेस, हाँ, मतलब खरीदना। आप पूछे कि बता रही हैं? इसका जब आप लोग सुनिए, वोकेब में जो चीजें हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग, ठीक है? अगर स्पेलिंग का है तो सिर्फ स्पेलिंग देख के ना रुक जाइए, स्पेलिंग चेक कर रहे हैं तो उसका मीनिंग भी देख लीजिए, समय हो तो एंटोनिम भी देख लीजिए, सिनोनिम भी देख लीजिए। ये तरीका है वर्ड्स को तैयार करने का, ठीक है? ओके, चूज वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस टू मेक एटोनमेंट फॉर वन सिन। एटोनमेंट क्या होता है? पाप से मुक्त कराना, क्या? मुक्ति। ठीक है, क्या होगा? ए फर्स्ट, एक्सपिएट। एक्सपिएट, ठीक है? जी सर। दूसरा पैसेज मैं मार्किंग कर लूं, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये तो सेटल लाइफ किया। ओके, ये थोड़ा सा बड़ा पैसेज है क्या? क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग inferences can be made? Okay, which statement best reflects a fact mentioned in the given passage? Select the most appropriate title for the passage. Identify most appropriate antonym of the word stare. 4 ही क्वेश्चन हुए क्या? 5वां नहीं? ओके, ठीक है। Discovery of a new bird species has sparked excitement among an ornithologist. ये वन वर्ड में भी आता है, स्पेलिंग में भी आता है, इसको लिख लीजिएगा, ornithologist and bird enthusiast worldwide. The bird, named the sapphire-winged warbler, discovered in a remote tropical island's rainforest, is a unique bird with vibrant blue feathers and a distinctive melodic song. ठीक है? Bird watchers and natural enthusiasts have been flocking to the island in hopes of catching a glimpse of this elusive and captivating creature. The discovery of the sapphire-winged warbler highlights the importance of preserving and protecting habitats. Amidst the excitement surrounding the discovery of the sapphire-winged warbler, researchers have embarked on a mission to uncover the bird's migratory pattern. Equipped with satellite tracking devices, they aim to trace the remarkable journey of this species across vast distances. By unraveling its migratory routes and stopover locations, scientists hope to gain insight into the challenges the sapphire-winged warbler faces during its arduous travel. The local community on the tropical island has embraced the newfound avian related to bird, ठीक है? Avian resident with great enthusiasm. Efforts are underway to raise awareness about the importance of conservation and to create protected areas that ensure the continued existence of this exquisite species. Based on the passage, which of the following inferences can be made?
Number 1, the sapphire-winged warbler is an aggressive and territorial bird species. Aggressive तो नहीं कहा गया. Conservation efforts are solely focused on protecting the sapphire-winged warbler. The discovery of sapphire-winged warbler has sparked global interest in birdwatching. The scientific community has lost interest in studying avian species. कौन सा है ऑप्शन करेक्ट? थर्ड वन. थर्ड वन होगा. थर्ड सर. Second question. Which statement best reflects the fact mentioned in the given passage? Which statement best reflects the fact? Okay. The sapphire-winged warbler is the only bird species on the tropical island. Schools on the island organize annual bird names. Researchers are using satellite tracking device to study birds' migratory pattern. Birds' migratory pattern. Okay. हाँ क्या होगा? मेरे ख्याल से थर्ड होना चाहिए. यस सर. Yes, sir. थर्ड. यस सर. Okay. Then, question number 3. Select the most appropriate title for the passage. The unique features of the sapphire-winged warbler, the migratory journey of the sapphire-winged warbler, conservation efforts in tropical rainforest, the curious behavior of birds in remote island. क्या होगा? बी सेकंड. बी दूसरा. फर्स्ट हो सकता है. यस सर. नहीं मुझे पढ़ने दिए. The discovery of a new bird species has sparked excitement among ornithologists and bird enthusiasts worldwide. The bird named sapphire-winged warbler, discovered in a remote tropical island rainforest, is a unique bird with vibrant features. Bird watchers and nature enthusiasts are flocking to the discovery of this. Highlight the importance of preserving and protecting habitat. देखिए इसका मेन फोकस जो है वो तो यहाँ जा रहा है, जो ये दे रहे हैं कि the discovery of the sapphire-winged warbler highlights the importance of preserving and protecting habitats. मेन चीज तो ये है. ठीक है, अगर ये है तो ठीक ऑप्शंस में, नहीं तो फिर लास्ट में भी देखिए. लास्ट का फोर्थ लाइन. The local community on the tropical island has embraced the new found avian resident with great enthusiasm. उसके बाद efforts are underway to raise awareness. ठीक है, कुल मिला के ये सब एक्सटिंक्ट हो रही है ना, ये भी बात तो कहा गया है. अगर ये बहुत ज्यादा पाई जाती है वहां पे तो लोगों में इतना एक्साइटमेंट नहीं होता. इतना एक्साइटमेंट क्यों है? क्योंकि रेयर स्पीसीज कुछ ही बचे. क्यों? क्योंकि उनके हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, है कि नहीं? तो पहला कह रहा है द यूनिक फीचर्स ऑफ, नहीं. द माइग्रेटरी जर्नी की बात बिल्कुल नहीं है. कंजर्वेशन एफर्ट्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द क्यूरियस बिहेवियर, तो फोर्थ भी नहीं होगा. सर सी वाला. सी हो सकता है सर. हाँ सी हो सकता है, क्योंकि माइग्रेटरी जर्नी की बात नहीं है, सी ही होना चाहिए. थर्ड सी. वो कंजर्वेशन की बात कर ही रहा है डिस्कवरी के थ्रू. बात समझ में आ रही कि नहीं? शुरू में भी देखिए, अंत में भी देखिए. ठीक है. फोर्थ, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्टेयर फ्रॉम द पैसेज. क्या होगा? ग्लिम्स. ग्लिम्स. ग्लिम्स सर. ओके, तीनों का ऑप्शन थर्ड ही आया. द टीम प्लेड एक्सट्रीमली ड्यूरिंग द मैच. लो, ये तो गड़बड़ कर दिया, इसमें से वर्ड ही गायब हो गया. ये एक वर्ड छूट गया, इतने से क्वेश्चन खत्म हो गया. हटाइए इसको तो. 6, 7, 8, 9,
वैसे मैं बता दूं आपको, इसमें जो ऑप्शन बनता वो ड्यूरिंग, लेकिन ड्यूरिंग थ्रू आउट नहीं, दोनों चल जाता, छोड़िए। 6 number. Select the most appropriate option to substitute the underlined part. Suitable to the instructions from the higher officials, the government land was allotted to the poor. क्या होगा? सर डिस्पाइट होगा। Despite? यस सर। Yes. Any other answer? एक बार अनिता मैडम फिर से पढ़िए, इसका सेंटेंस का भाव सुन लीजिए। कंसेशन दे रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है या फेवर कर रहा है? द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम, अंडरलाइन पार्ट को छोड़ दीजिए। द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हायर ऑफिशियल्स, जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनके निर्देश पे ना, द गवर्नमेंट लैंड वाज अलॉटेड टू द पुअर, तो पुअर को, गरीबों को गवर्नमेंट लैंड अलॉट किया गया होगा उच्च अधिकारियों के आदेश के खिलाफ या आदेश के अनुसार? सर इन अकॉर्डेंस विथ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। माई ब्रदर इज रिजेंबलिंग माई मदर, क्या होगा? resembles default default, क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं रहेगा। Choose alternative with which best expresses the meaning of the underlined word, जो best express करता है। Toffee nosed, ये तो वो है, idiom है। Mr. Avinash is very nice and friendly, but his brother is toffee nosed, क्या होगा? second B second सर फोर्थ होना चाहिए। अब पहले मैं पढ़ता, पहला कह रहा है person who never trust anyone, a person who thinks he is of high social class and looks down all। हाँ, मेरे ख्याल से थर्ड, सेकंड हो सकता है। yes sir second is यस नहीं, देखिए वो तो ऐसा Third, लग रहा है हमें ना। A person who thinks he is intelligent and perfect, ये भी लग रहा है कि हो सकता है। फोर्थ भी लग रहा है कि हो सकता है पर्सन हु इज एरोगेंट एंड क्रूअल, तो लग सकता है, हो सकता है के हिसाब से किया जाए कि एग्जैक्टली है कि वो किया जाए। सर थर्ड होना चाहिए सर। ये चाहिए वाली बात ही मत करी भाई हमसे। मैंने क्या कहा कि जब भी आप लोग को वर्ड चेक किया है, यस सर, तो होना चाहिए तो सीधे कहिए कि है, होना चाहिए क्या मतलब? होना चाहिए यानी पॉसिबिलिटी है। जी सर। हाँ, क्या लेकिन और किसी ने किया है, इसको चेक किया है, डिक्शनरी में देखा है टॉफी नोज क्या होता है? Yes sir, consider themselves to be better than other people, especially than people of lower social class. तब तो सेकंड आएगा। यस सर सेकंड है सर। ठीक है सपना, तब सेकंड आएगा। Yes sir, social, yes. ठीक है, a person who thinks he is of high social class and looks down on, अभी करीब पर आप लोगों ने पढ़ा है ना, look down on मतलब किसी को तुच्छ समझना ना, अपने से कम समझना। ठीक है, ओके। 9 number. Select the most appropriate meaning of the idiom. Spill the beans, क्या है? सभी ऑप्शन सेकंड है रिवील अ सीक्रेट। इसी का एक होता है वॉश लिनेन इन पब्लिक। ठीक है, ओके। 10 number. The police could not establish how the accident, क्या है? सर सेकंड came about. Came about यानी कैसे हुआ, कैसे घटित हुआ ना? Yes How sir, it to be happened. यस सर ठीक है, संतुष्ट हैं सब लोग? yes sir. ओके, चलिए कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। वेलकम, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you sir. Good night sir. खुश रहिए।
सर जी सर। जी सर। गुड नाइट सर। हाँ सुन रहे हैं सर, बताएं सर। सर इन्हें क्लियर करिए। जी सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही, आवाज आ रही? बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही आवाज में। हाँ जी बताएं। सर मैं ये डिफाइनिंग क्लॉज होता है तो इसमें जो है सर हम कॉमा का यूज नहीं कर। जी सर, डिफाइनिंग क्लॉज में कॉमा का यूज नहीं होता है। हाँ सर, डिफाइनिंग क्लॉज में कॉमा का यूज नहीं करते हैं सर। डिफाइनिंग क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। डिफाइनिंग क्लॉज यहाँ हम कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स डिफाइनिंग। जी सर। जी तो सर हम यहाँ रेनन मॉर्टिन का एक देख रहे थे क्वेश्चन, जैसे बढ़ा रहे थे आगे उसमें, तो फॉर्मेशन था इसमें कंपाउंड सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स बनाना। तो उसमें एक सेंटेंस में सर दिया है, जैसे वहाँ लगा हुआ है सर, इफ यू डू नॉट वेस्ट कॉमा यू विल नॉट वांट। तो कॉमा क्यों लगा सर? कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स करना था सर, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड करना था, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड करना था ना। कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स करना था। हाँ उन्होंने कहीं कहीं पे कॉमा लगाया है, ये दिक्कत उन्होंने किया है, ठीक ना। जबकि उन्होंने रूल में लिखा है कि नहीं लगेगा। नहीं लगना चाहिए। ये मैं आपको बताऊं, रुकिए कौन कौन है इसमें। प्रेम है, सर्वेश है, और तो बाकी लोग चले गए क्या? सपना अपना होती तो बताती। ये प्रॉब्लम हम लोग भी फेस कर रहे थे, वहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। सर्विस तुम्हें याद है इस तरह का जब पेज नंबर 197 है। करे हैं सर, ठीक है। वो गलत यूज किए सर, नहीं होगा वहाँ पे, कई जगह ये है, वो गलत है। हम लोगों ने भी उसको देखा था प्रैक्टिस बैच में करते समय। हम बीटीसी की बुक जो पढ़ा रहे साहित्य प्रकाश में था जी सर बीटीसी की बुक पढ़ा रहे थे 4th सेमेस्टर में, तो उसमें भी सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कॉमा का यूज हुआ है सर। तो यही थोड़ा सा हम कंफ्यूज नहीं सर 2 मिनट में रुको, क्लियर करेंगे। नहीं 2 मिनट में रुकूंगा सर आपको। एक्चुअली है क्या कि साहित्य प्रकाशन का हो या कोई एमबी प्रकाशन का हो, है ना, या रवि प्रकाशन का हो या खैतान प्रकाशन का हो, ये लोग अंग्रेजी नोट किए कहाँ से हैं? अपने दिमाग से तो कहीं से नोट किए नहीं होंगे कोई सेंटेंस, कहीं ना कहीं से कट सर उसमें देखा रेनन मॉर्टिन के क्वेश्चन मिल रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से कट कॉपी पेस्ट मारे होंगे। तो कट कॉपी पेस्ट मारने के लिए है क्या कि जो मोस्ट कॉमन एंड स्टैंडर्ड बुक जो है, मोस्ट कॉमनली स्टैंडर्ड बुक वो रेनन मॉर्टिन है, तो उसी को नकल मारेंगे ये लोग, है ना। ये तो बच्चों को अक्सर हर बैच में हम दिखाते हैं, प्रैक्टिस बैच में, कि देखो उन्होंने बुक फर्स्ट में क्या लिखा है, बुक सेकंड में कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं अपने आप को, फिर थियरी में क्या लिखा है, एक्सरसाइज में क्या दिया है ना। उनके तो एक्सरसाइज में भी हम एरर दिखाते हैं बच्चों को, है ना। नहीं वो तो पता है सर, वो सही है, तो हमने वही बताया सर, तो गलत नहीं बताया ना उनको। नहीं बिल्कुल सही आपने बताया सर, वही है ही, है ना, एकदम वही है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दुर्भाग्य ये है ना कि बाकी जो किताबें मार्केट को हम प्रैक्टिस बैच में हमने नहीं प्रैक्टिस बैच में हम लोग खुद भी किए, जो भी प्रैक्टिस बैच सेकंड प्रैक्टिस बैच के जो बच्चे हैं इवनिंग वाले बैच के, उनसे पूछेंगे तो वो खुद भी बता देंगे, है ना। उसमें प्रेम भी थे, सर्वेश भी थे, आप भी थे। आप खाना के रेगुलर नहीं हो पाते थे, है ना, तो उसमें सारी चर्चा हम लोगों ने की है, ठीक है। ओके, खास करके अगर रिलेटिव समझ में नहीं आ पाता, नहीं खास करके अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, खास करके रिलेटिव प्रोनाउन अगर वहां पे है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ तो कॉमा वैसे भी नहीं लगेगा। जी सर क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कॉमा लगा देंगे, ठीक सर। तो ये आप किसको पढ़ा रहे हैं इतना हाई लेवल का चीज? तो सर बीटीसी 4th सेमेस्टर में है सर ये सब। बीटीसी अच्छा बीटीसी वालों, बीटीसी के जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं। जी सर जी, हाँ सर, कोर्स कर रहे हैं जो ना। जी सर
नहीं ठीक है सर, बस हो गया, क्लियर हो गया सर, अब आप परेशान हुए। नहीं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, वही है ही। अगर आपको जरा भी कोई इफ एंड बट लगता हो तो वही जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसी से एक आध चैप्टर पहले आके देखिए, उसके जो थियरी उन्होंने लिखा है, थियरी में साफ साफ लिखा होगा, वहां नहीं लिखा है तो बुक फर्स्ट में लिखा होगा। ठीक है जी सर, जी सर। जो आपने साफ साफ कह दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हम कॉमा नहीं लगाएंगे अगर वो है डिफाइनिंग है, तो आपको कॉमा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए फिर तो सर जैसे अगर क्या नॉन डिफाइनिंग सर डिफाइनिंग न रहे, क्या डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है क्या सर? फिर से हमने कहा जैसे डिफाइनिंग क्लॉज तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, क्या ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें से डिफाइनिंग ही रूल लगेगा और कुछ नहीं, और कुछ भी होता है? नहीं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग की बात तो आती है जब आपका रिलेटिव क्लॉज रहेगा, है ना। रिलेटिव क्लॉज का मतलब जब रिलेटिव प्रोनाउन एज अ कंजंक्शन काम करेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलेंगे उसमें हर समय रिलेटिव प्रोनाउन हो एज अ कंजंक्शन जरूरी नहीं ना है, सब कोई अदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो सकता है ना। तो मान लीजिए अगर नहीं है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो वहां पे कॉमा लगेगा क्या? नहीं, कॉमा अगर लगेगा, मेरी बात समझे, कॉमा तो आप जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बदले भी लगा सकते हैं ना कॉमा तो। जी सर, जी सर। पर अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ खास करके रिलेटिव प्रोनाउन वाले केस में जो बात आप कर रहे हैं वहां कॉमा नहीं लगेगा। अच्छा सर, जैसे सेंटेंस में ये कहिए सर। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं सर सुनिए जरा सर, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए जरूरी है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। यस सर, यस सर। राइट। अब जब सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को कौन जोड़ेगा? या तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ सकता है या रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ सकता है। ये बात समझ में आई सर? जी सर, जी सर। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां कॉमा लग भी सकता है, ठीक है। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन जोड़ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन दो तरह का होता है, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। जी सर, जी सर। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर आपने कॉमा लगा दिया, मतलब आप भी बताना चाहते हैं कि वो जो रिलेटिव क्लॉज है वो कैसा हो गया? नॉन डिफाइनिंग हो गया, क्योंकि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज के पहले तो आप कॉमा लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो कॉमा वाला चक्कर है सर वो सिर्फ और सिर्फ डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के साथ लगता है, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका जो है रिलेटिव क्लॉज ही हो, कोई अदर सबऑर्डिनेट क्लॉज भी तो हो सकता है। जी सर, जी हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। बढ़िया सर, बढ़िया। ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। वेलकम। गुड नाइट सर। ठीक है फ्रेंड, गुड नाइट। समामा देख रहे हैं छोटे बच्चों को कितना हाई लेवल का चीजें लोग पढ़ा दे रहे हैं, बच्चे पगला जाएंगे, सब बीटीसी छोड़ के भाग खड़े होंगे। सर उसमें सब ट्रेनिंग वाले होंगे ना, जो टीचिंग सब्जेक्ट लिया होगा उसको पढ़ा रहे होंगे वो। हाँ, अरे ये कहाँ पूछा जाता है किसको आता है? हाँ, बहुत ज्यादा डीप चले जा रहे हैं। किसको आता है और कौन पढ़ाता है? इतना नहीं पढ़ाया जाता जितना ये पढ़ा रहे हैं। वो हो ये उनके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ये अपना हाथ साफ कर रहे हैं। ये अपना हाथ साफ कर रहे हैं, अपने आप को ब्रश अप कर रहे हैं, क्योंकि बढ़िया टीचर आप पढ़ा के बनते हैं, पढ़ के बढ़िया टीचर नहीं बनते, पढ़ा के बढ़िया टीचर बनते हैं, ठीक ना? सही बात है। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन। ठीक है फ्रेंड, गुड नाइट। ओके फ्रेंड, ठीक है, गुड नाइट। ठीक है फ्रेंड, चलें।